Jai Hind student. So today we are going to do the rest of the question of exercise 3.2. 1 to 13 we covered in that part 3rd, and now in this part 4th we are going to start from the problem 14. So problem 14 is having two parts. We have to show that the product of these two numbers, yani AB, is not equal to BA. We know that in product multiplication it is not commutative. Let us prove here. So first of all we'll multiply this LHS. Take LHS. Okay. Now multiply करते हैं इसको. First row, first column. 5 to 10. Okay. Then minus 3. First row, second column. 5 minus 4. Next, second row, first column. 12 plus 21. Then 6 plus 28. Okay. What is left with us? 7, 1, 33, then 34. Okay. Now come to next, RHS. Let us see RHS now. RHS. First row, first column. 10 plus 6, 16. 10 plus 6. First row, second column. Minus 2 plus 7. Minus 2 plus 7. Okay. Then second row, first column. 15 plus 24. 5 3s are 15 plus 24. Second row, then second column. Minus 3. 7 4s are 28. This is what? It is 16. This is 5, 39, and this is 25. So LHS is not equal to RHS. So AB, A cross B is not equal to B cross A. That's why while I taught you about its properties, I show you there that it is not commutative, product is not commutative. Now second part is of 3 by 3 that you have to do yourself and check whether AB is equal to BA or not. Now come to problem 15. These type of question you will find in the examination. Find A square minus 5A plus 6I. I stand for identity or unit matrix, and unit matrix is always like the matrix is given in the question. Clear? जैसे 3 by 3 की मैट्रिक्स है A, तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होगी? 3 by 3 की होगी. So let us solve solution. सबसे पहले हमें निकालना है A square, and A square क्या होगा? A cross A. So A cross A, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, minus 1, 0. Cross, same, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, minus 1, 0. Clear? Let us multiply. इसको multiply करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? First row, first column. 4, 0, 1. 5. Again 4, 0, 1, 5. First row, second column. 0, 0, minus 1. First row, third column. 2, 0, 0. Clear? Now second row, first column. 4, 2, 3. 4 plus 2, 6 plus 3, 9. Again 0, 1, minus 3. तो कितना हो गया? Minus 2. Next 2, 3. कितना हो गया? 5. और नीचे वाला 0. Now come to last row. 2, minus 2, 0. यानी 0. Next 0, minus 1, 0.
देन नेक्स्ट 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2. So this is what? This is the value of a square. Clear? Now we have to find 5a. This is a square. Now we have to find the value of 5a. 5a and that is equal to 5 को हम अगर a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 5 2 10, 0, 5, 10, 5, 15. Clear? 5 minus 5, 0. Clear? Then what about this 6i? I is a matrix of 3 by 3 identity matrix. Now put the value a square minus 5a plus 6i is equal to a square की वैल्यू ये, 5a की वैल्यू ये, इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. सो लेट अस सी 5 minus 10 minus 5. क्लियर? -1 और ये क्या? 0 -1. 2 minus 5 minus 3. 9 minus 10 1. कितना हो गया? 9 minus 10 -1, सॉरी, -2 -5 -7. 5 minus 15 minus 10. Clear? 0 minus 5 minus 5 minus 1 plus 6 plus 5 4 minus 2 then plus 6i. 6i का मतलब 6i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर? 6i क्या हो जाएगा? इसके साथ प्लस हो जाएगा. तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा? मैं यहां लिख देता हूं. तो आवर आंसर इज -5 plus 6 1, देन -1, उसके बाद -3, उसके बाद -1 -7 plus 1 -7 plus 1, सॉरी plus 6. तो ये कितना आ जाएगा? -1 -10 -5 4 -2 plus तो 4. So this is your required answer. So like this we can find out the solution of what? These kind of questions. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 16. Again this is very important. क्यों important है? क्योंकि these kind of question you will find in the examination. We have to prove this कि this is equal to 0. हमें ये prove करना है. So first of all find a cube. a cube कैसे find out करेंगे? First of all we have to find a square. a square a into a. Let us see. So 1 0 2 0 2 1 2 0 3 into 1 0 2 0 2 1 2 0 3. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखें. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 4 कितना आ गया? 5. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0. क्लियर? ओके. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 6 यानी 6 plus 2 कितना हो गया? 8. नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2. नेक्स्ट 0 4 0. नेक्स्ट 0 2 3 यानी कि 5. ओके. कम टू दिस थर्ड 2 0 6 8 0 0 0. 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 9 plus 4 13. This is the value of a square. Now again we have to find the value of a cube.
ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, एंड दिस इज, हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर निकाल लिया, कितना 508,245,8030. While doing this multiplication, be careful कि कोई मिस्टेक ना हो जाए. Now a square into a again, 1 0 2 0 2 1 2 0 3. देखें क्या आंसर आता है आपके पास. मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बन जाएगा 5 0 16 21. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0. ठीक. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 0 8 3 24, तो 34. क्लियर. फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 10 12, देन दिस 0 8 0 4 4 8 और ये 15 और 8 हो जाता है 23. यही बना 4 और 5 3 15, हाँ 15 और 8 हो जाता है 23. देन लास्ट 8 0 13 2 26, दैट इज 34. देन दिस थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0, देन 16 0 13 3 39. ठीक है. 8 2 16 0 और 13 3 हो जाता है 39 और 16 आ जाता है 40 50 और 55. So this is the value of a cube. Now put all these value in this. So a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to, अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. लेट अस राइट सबसे पहले a क्यूब की वैल्यू 12 8 23 34 0 55. क्लियर. माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर की वैल्यू ये थी, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, 6 5 30 0 6 8 48 6 2 12 6 4 24 6 5 30, फिर 48 0 6 3 18 6 1 6 78. क्लियर. नाउ प्लस 7a, a क्या है, ये है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस a को. 7 0 14 0 14 7 14 0 21. देन प्लस 2i i मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, 3/3 की होगी, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2. Now we have to find the solution of this. So let us see क्या solution आता है. 21 minus 30 minus 9 बचता है और ये plus 9 है, तो पहला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0. सेकेंड 0 0 0 0. थर्ड 34 और 48 होता है, 48 माइनस 48 0 आ गया. 12 माइनस 12 0 8 14 16 और 8 24. तो ये सारी टर्म जो हो जाएंगी ये किसकी हो जाएंगी, 0 की हो जाएंगी. 55 ये 6 कितना हो गया, 55 65 75 76 78. तो ये सारी टर्म किसकी हो जाएंगी,
0 0 0, hence proved. So calculation part जब भी आप करें, be careful while you are doing calculation part like this, especially while you are finding out the value of a square or a cube. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 17. If a is equal to this and I is equal to this, find k so that a square equal to ka minus 2i. So we have to find out the value of k. So again, these kind of question will also be there in the examination. Sometime it is in a square, sometime it will be a cube also. So solution. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है a square. So a square is equal to a cross a. So that is 3 minus 2, 4 minus 2, and again 3 minus 2, 4 minus 2. Multiply it. What you will get? Let us see. क्या मिलता है? 9, 8 minus 8. Again, first row, second column, 3 to the 6, then 2 to the 4 और किसका? प्लस का. Then second row, first column, 12 minus 8, then 4 to the minus 8 minus 4. So what you will get? 1 minus 2, 12 minus 8, 4 and minus 12. Clear? Now put this value here. Now according to question, a square is equal to ka minus 2i. So what is the value of a square? A square is what? 1 minus 2, 4 minus 12 equal to ka. This is a, k. So you can write like this: 3k minus 2k, then 4k minus 2k. This is not like this कि 3k minus 2k, नहीं. This is first element, this is second, this is third, like this. Minus 2i. So I is this, multiply by 2, 2, 0, 0, 2. Take this term this side. So you will get 1 minus 2, 4 minus 12 plus 2, 0, 0, 2. Clear? Is equal to 3k minus 2k, 4k minus 2k. देखते हैं क्या वैल्यू आती है. 3 minus 2, 4 minus 10. Clear? 3 minus 2, 4 minus 10 is equal to 3k minus 2k, 4k minus 2k. और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? यू नो दैट कि k की हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू जब इक्वल होती है तो हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होती है, चाहे आप इसको के इक्वल कर लें, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको. क्लियर? आप किसी को भी इक्वल करके देख सकते हैं. सो अगर ये +4, सॉरी यहां +4 आना चाहिए था, 4 to the 8 और +4, तो ये आ जाता -4 और यहां पे -4. समटाइम व्हाइल यू आर डूइंग दिस, -4 और -2, क्योंकि k की वैल्यू अलग नहीं आ सकती, सब में सेम आती है. सो अब आप किसी से भी वैल्यू निकालें, जो k की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 3 is equal to 3k से निकाल लें. So k is equal to 1. In all the aspects, आप जिस भी corresponding elements को compare करेंगे और equal रखेंगे, so you will get the value of k 1. Pause the video to note. Now question 18. It's very important question. If A is equal to this and I is an identity matrix of order 2, show that I plus A is equal to I minus A this. So we have to show this thing. So let us take left hand side, I plus A. I is a matrix of 2 by 2, identity matrix. तो ये क्या होगा? 1 0 0 1.
प्लस a की वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 देन 10 अल्फा बाय 2 0। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लाइज 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 1। क्लियर? नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड RHS, टेक RHS हमें क्या कहता है, i माइनस ए निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। i माइनस ए, जैसे हमने i प्लस ए निकाला, यहां पे अगर मैं i माइनस ए डाल देता हूं, देखो i माइनस ए, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस तो ये 10 अल्फा बाय 2, फिर माइनस 10 अल्फा बाय 2 और फिर 1। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, i माइनस ए की वैल्यू। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस। चलो देखते हैं कैसे। सो 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 1, साथ में है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड आफ्टर मल्टीप्लाई वी हैव टू मेक इट इक्वल विद दिस। देखना है कि क्या ये शो करना है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट है कि नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि 10 अल्फा को मैं अल्फा बाय 2 को मैं कुछ लिख लेता हूं, t लिख लेता हूं, लेट, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है इसको एक ही बार t लिख लो। ओके, हमारे पास कॉस और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो भी 10 में होता है। क्या, कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है 10 में वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्लियर? और साइन का जो होता है वो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्लियर? अब क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो अब हम यहां पुट करने लगे हैं। सो ये बना 1 t माइनस t 1, और यहां पे कितना आ गया, कॉस है, कॉस की जगह पे 1 माइनस t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। क्लियर? इसकी जगह पे मैंने t पुट कर दिया क्योंकि यही लिख रहा था। देन माइनस साइन 2t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर, अगेन साइन 2t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर, कॉस 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इट इंप्लाइज कितना आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यही रहा, t के साथ मल्टीप्लाई किया 2t स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, तो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस 1 माइनस t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 प्लस t स्क्वायर सबके नीचे है, तो एलसीएम भी सेम रहेगा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो इसके साथ करेंगे माइनस 2t और इसके साथ करेंगे तो t माइनस, तो ये आ गया माइनस 2t, t के साथ करेंगे तो प्लस t माइनस t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ किया तो माइनस t प्लस t का क्यूब, माइनस t प्लस t का क्यूब। ओके, देन 1 के साथ किया तो प्लस 2t और नीचे वही 1 प्लस t का स्क्वायर। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसके साथ किया तो 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर, 1 के साथ किया तो 1 माइनस t का स्क्वायर अपॉन
1 प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ अब ध्यान से देखते हैं, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना बना? 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर, कैंसिल आउट। ये माइनस 2t प्लस टी, तो क्या बना? माइनस टी। तो मैं माइनस टी को कॉमन ले लेता हूं, यहां बचा 1, अंदर बचा, देखो माइनस टी को मैंने कॉमन लिया, तो यहां पे बचना चाहिए था, ये कौन सा कॉलम है? ये सेकंड है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टी क्यूब आना चाहिए था। तो ये माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ओके, नाउ हियर 2t माइनस टी, तो t बचा, अगेन t कॉमन, 1 प्लस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ओके, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये फिर से बचा टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर नाउ, यहां 1, यहां माइनस टी, टी की क्या वैल्यू है? tan अल्फा बाय 2, माइनस tan अल्फा बाय 2। ये फिर टी की वैल्यू है tan अल्फा बाय 2 और यहां 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो हमने प्रूव कर दिया कि i प्लस ए, ये देखो, इज इक्वल टू i माइनस ए कॉस अल्फा, दिस मल्टीप्लाई करने पे यही सेम वैल्यू आती है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। कम टू प्रॉब्लम 19. So 19 question is little bit lengthy, so I am not writing the question. So let us, the question is, a trust fund has 30,000 that must be invested in two different type of bond. So let money invested in first type of bond is X. So let money invested in first type of bond, first type of bond is equal to rupees X. Clear? फिर let money invested in second type of bond is equal to rupees 30,000 minus X. अच्छा, आगे पढ़ते हैं। The first bond pay 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and 2000. ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बॉन्ड आया है, सो हम इसको रो और कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सो द रो मैट्रिक्स शोज, रो में हम इसको लिखते हैं, रो मैट्रिक्स शोज द इन्वेस्टमेंट एंड कॉलम क्या शो करेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड कॉलम शोज द, पहले का कितना है? पहले का है 5% यानी 5/100, दूसरे का 7%, 7/100, एंड द कॉलम शो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, तभी तो हम इसको क्या कर पाएंगे? मल्टीप्लाई, चाहे इसको कॉलम में लिख लो चाहे इसको। सो अब दिस x 30,000 माइनस x 5/100 7/100 एंड इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? हमें इज इक्वल टू दे रखा है कितना? 1800। पहला जो वो है वो कितना है? 1800। सेम वी हैव टू गो फॉर सेकंड पार्ट टू, इंस्टेड ऑफ 1800 वी हैव टू राइट हियर 2000। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम।
सो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये आ गया 5/100 x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। क्लियर? एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट व्हाट 5x प्लस 21, ठीक है, 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 180000। क्लियर? माइनस किया, माइनस 2x, इसको उधर ले गए, सो 2,10,000 में से 1,80,000 को माइनस किया, सो अगेन इट लेफ्ट 30,000। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 15,000। ये क्या आया? लेट मनी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज 15,000। तो सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड, वो भी कितना आ जाएगा? 30,000 माइनस x, दैट इज रुपीस, कितना आ जाएगा? वो भी दैट इज 15,000। क्लियर? नाउ इन सेकेंड पार्ट, instead of 1800 what is given to you? Instead of 1800 it is given 2000। so हम क्या करेंगे? सेम वही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x 30,000 माइनस x 5/100 7/100 इज इक्वल टू 2000। मल्टीप्लाई करके, जैसे यहां मल्टीप्लाई किया था, ये आ जाएगा -2x, ठीक है, फिर प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू 2 लाख। क्लियर? सो ये उधर गया तो माइनस का 10,000 हो गया, 2x इज इक्वल टू -10,000। ओके, नेगेटिव कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया 5,000। क्लियर? सो एक टाइप के बॉन्ड में 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और सेकंड बॉन्ड में, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड कितना आ गया? 30,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 25,000। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो भी है with the help of matrix. So we can use matrix in many ways. Pause the video to note down. In problem 20, again the question is lengthy, that's why I am not writing the question. The bookshop of a particular school has 10 dozen of chemistry book. So number of chemistry book कितनी हो जाएंगी? Number of chemistry book हो जाएंगी कितनी है? 10 डजन। सो एक डजन में 12 होती है, सो 12 इंटू 10 120 बुक्स, ठीक है। एंड उसके बाद था 8 डजन ऑफ फिजिक्स बुक एंड 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक। सो 8 नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, 8 डजन, सो 12 इंटू 8 दैट इज 96। फिर नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, वो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10 अगेन 120, ठीक है। उसके बाद देयर सेलिंग प्राइस इज 80, 60, 40 ईच। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फॉर सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सो इट्स सिंपल, कॉस्ट है 80, 60 and 40. So now again the row matrix, this will represent what? Number of books. So 120, then 96, then 120. Okay, represent the number of books,
and column matrix represent the cost 80, 60, 40. The cost of या सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक. क्लियर? सो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120, 96, 120. Here 80, 60, 40. Clear? Is equal to now. First row, first column. 8 2s are 16. 8 1s are 8, 9. और 2 0 आ गया तो 9600. क्लियर हो गया? देन 96, 6 6 जा 36, 3, 9 5 45, 9 6 जा 54 और 54 प्लस 3 57. ओके नाउ तो ये 5760. देन अगेन 12 4 जा 48 और 2 0. क्लियर? नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट? कितना आया? 1, देन 6, देन 8 और 6 14 और 7 21 2 9 10 11 and 9 कितना? 20. So the price is 20,160. That amount I will receive for all this book. Clear? Pause the video to note down. Multiple choice question 21 and 22, and both the questions are very important, especially this 21. X, Y, Z, W and P are matrix of order 2 into N, 3 into K, 2 into P, N into 3 and P into K. So this is order given to this X, Y, Z, W, P. The first question is the restriction on N, K and P so that P, Y plus W, Y will be defined. अब हमें इसको डिफाइन करना है. किसको? इसको. तो Y कॉमन है तो मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूं. ठीक है? यानी इन दोनों का जो एडिशन होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे? Y से. तो ठीक है, P प्लस W को तभी ऐड किया जा सकता है जब इनका क्या हो, तो मैट्रिक्स को तभी ऐड किया जा सकता है व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर सेम. सो P का जो मैट्रिक्स है ऑर्डर है वो कितना है? P का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ P कितना है? P इंटू K. अच्छा, W का जो ऑर्डर है वो कितना है? W का ऑर्डर है N इंटू 3. तो इन दोनों को तभी ऐड किया जा सकता है जब ये ऑर्डर इस ऑर्डर के क्या हो? इक्वल हो. तभी दो मैट्रिक्स के का सम किया जा सकता है. यानी P किसके इक्वल होना चाहिए? N के. और K किसके इक्वल होना चाहिए? P इक्वल टू N एंड K इज इक्वल टू 3. लेट अस सी कौन सा ऑप्शन है. सो P इज इक्वल टू N एंड K इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नाउ कम टू दिस. इफ N इज इक्वल टू P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस. इसका क्या ऑर्डर होगा? अगेन ये मैट्रिक्स को तभी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या तभी ऐड किया जा सकता है जब इसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो. तो वही देखते हैं कि x का ऑर्डर कितना है. x का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है कितना? यहां पे लिखता हूं. इसका ऑर्डर है 2 इंटू n और z का ऑर्डर कितना है? z यानी थर्ड 2 इंटू p. तो इसका मतलब हो गया ये तो इक्वल है. n भी किसके इक्वल होना चाहिए? p के इक्वल होना चाहिए. तब इन दोनों को क्या किया जा सकता है? सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. यानी इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? या तो 2 इंटू p लिख लो या फिर 2 इंटू n लिख लो. तो यहां पे देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा. ये है p इंटू 2. p इंटू 2 नहीं हो सकता. क्या होगा? या तो 2 इंटू p होगा या 2 इंटू n होगा. सो 2 इंटू n कोई और है? नहीं है. तो दिस सेकंड इज द करेक्ट आंसर.
क्लियर? अच्छा, इसमें एक और चीज देखी जा सकती है, जैसे इन दोनों का एडिशन तो ये आ गया कितना, p की वैल्यू n आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई, और फिर y से हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और y का जो ऑर्डर कितना दे रखा है हमें, 3 इंटू के, क्या दे रखा है, 3 इंटू के। ये जो ऑर्डर बनेगा ये क्या बनेगा, ये जो मैंने ऑर्डर बताया कि p की वैल्यू n और k की वैल्यू 3, ये जो ऑर्डर बनना था, ये ऑर्डर बनना था p इंटू के इज इक्वल टू n इंटू 3। चाहे मैं p इंटू के लिख लूं, चाहे मैं n इक्वल टू n इंटू 3 लिख लूं, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, जो भी इसका आंसर बनेगा उस ऑर्डर के साथ 3 इंटू के, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द आंसर of these kind of question, but this is very important according to paper point of view. So in this lecture I covered all the question, rest of the question of exercise 3.2. just solve all the questions of this exercise, and then if you have faced any kind of problems, then you can write in the comment box. Till that, Jai Hind.